मैं केवल सेलिब्रेट करने नहीं, मैं अपने आप को डेडिकेट करने भी यहाँ पर आया हूँ। So tell the Lord and say, I have not just come here to celebrate, but I have come to dedicate my life to you. आज एक नया चैप्टर शुरू हुआ है आपके जीवन का। Today a new chapter has begun in your life. पुराना चैप्टर जैसा भी हो वो बीत चुका है। Whatever the old chapter was like, it is over. आज आप डिसाइड करो कि इस साल का चैप्टर आपका कैसा होगा। Today you decide what this new chapter will look like in this year. क्या आप एक जयवंत योद्धा की तरह जियोगे? Will you live like a warrior, a champion, victorious champion? परमेश्वर ने आपको अपनी आत्मा की तलवार दी है। God has given you the sword of His Spirit. परमेश्वर ने आपको वो कलम दी है जो आत्मा की है। एक ग्लोरियस, एक बेस्ट कहानी लिखो अपनी यीशु के नाम में। God has given you the pen of His Spirit, so you can write the best and the most glorious story for your life. Do you know you can execute judgment on demonic principalities and demonic spirits? क्या आप जानते हैं आप दुष्ट की ताकतों पर, दुष्ट की आत्माओं पर न्याय कर सकते हैं? You can shut the mouth of Satan. आप शैतान के मुंह को बंद कर सकते हैं। You can limit Satan in your life. आप शैतान को अपने जीवन के विरुद्ध आने से That he सीमित कर will सकते not हैं raise his ugly head against you and your family. और वो अपना भद्दा सर आपके परिवार के विरुद्ध नहीं उठा पाएगा। Jesus has given you authority. यीशु ने आपको अधिकार दिया है। His word says in Luke 10:19, Behold, I have given you power and authority to trample on snakes and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means harm you. लूका 10:19 में उसका वचन कहता है, देख मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुझे कोई भी हानि नहीं होगी। He didn't say, I will trample snake and scorpions for you. उसने ये नहीं कहा मैं तेरे लिए सांप बिच्छू रौंदूंगा। He said, you will do it. उसने कहा तुम करोगे, But I give you my authority. इसीलिए मैं तुम्हें अपना अधिकार देता हूँ। But what will happen if you will not use your authority? लेकिन क्या होगा अगर आप अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करोगे तो? Devil will be loose in your life. शैतान आपकी जिंदगी में खुलेआम घूमेगा। We have to take a rightful place. हमें अपना सही स्थान लेना जरूरी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हो, If you are in the Lord Jesus Christ, तो आपके पास अधिकार है शैतान की सारी ताकत के ऊपर। then you have authority over all the power of the devil. मगर आपको उस अधिकार को इस्तेमाल करना पड़ेगा। But you will have to use that authority. आपको अपना मुंह खोलकर सबसे पहली चीज आपको मानना पड़ेगा कि आपके पास अधिकार है। First of all, you'll have to believe and agree that you have authority. ये अधिकार केवल पास्टर्स और प्रीचर्स के पास नहीं है। This authority is not only for pastors and ये preachers. परमेश्वर के हर एक बेटे और बेटी के पास ये अधिकार दिया गया है। This authority has been given to every son and every daughter of God. अगर आप मसीह में हो, If you are in Christ, तो आपको अधिकार दिया गया है शैतान की हर एक गंदी ताकत के ऊपर। then you have been given authority over every wicked power of the enemy. Amen. मैं आपको बता रहा हूं, हमारे देश ने आज तक ईसाई धर्म देखा है। I'm telling you, our country has only seen the religion of Christianity till date. हमारे देश ने एक ग्लोरियस तेजो में कलीसिया नहीं देखी, मगर परमेश्वर ऐसे विश्वासियों को खड़ा कर रहा है जो उसके तेज से चमकने वाले हैं। वो ऐसे विश्वासियों को खड़ा कर रहा है जो उसके अधिकार से भरे हुए हैं। वो ऐसे विश्वासियों को खड़ा कर रहा है जो दुनिया को हिलाने वाले होंगे यीशु के नाम में। Our country is yet to see a glorious church. The Lord is raising such believers who are filled with His glory, filled with His victory, and will shake the nations for His name. Amen. मैं आपको बता रहा हूँ, I'm telling you, परमेश्वर के पास केवल एक जगह है आपके लिए, God has only one place for you, और वो जगह है and that at the is top. at the top. At the top. सबसे ऊंची जगह पे, At the top. सबसे ऊंचाई पे। हालेलुया। ये देश यीशु की महिमा को देखेगा। This nation will witness the glory of Jesus. हर एक पॉलिटिकल पार्टी यीशु मसीह की महिमा को देखेगी। Every political party would see the glory of Jesus.
उसकी कलीसिया की बढ़ती का कोई अंत नहीं है, उसके राज्य की बढ़ती का कोई अंत नहीं है यीशु के नाम में। There is no end to the growth of His church. There is no end to the growth of His kingdom. आमीन। हम ईसाई धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, हमें ईसाईयत को नहीं बढ़ाना। We are not preaching the religion of Christianity. We don't have to expand the religion of Christianity. नहीं, हम उसके राज्य के प्रतिनिधि हैं। We are the representative of His kingdom. We are the ambassadors of heaven. हम स्वर्ग के राजदूत हैं. हम स्वर्ग के राजदूत हैं। We are the ambassadors of heaven. हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। Lift up your hands. मैं ये घोषणा करता हूं कि ये हाथ डिलीवरर के, छुड़ाने वालों के हाथ हैं, छुटकारा देने वालों के हाथ हैं यीशु के नाम में। I decree these are the hands of deliverers of those who set free in the name of Jesus. मैं घोषणा करता हूं ये हाथ चंगा करने वाले के हाथ हैं यीशु के नाम में। I declare these are the hands of healers in Jesus' name. हालेलुया। सबसे पहली चीज, इससे पहले मैं वचन में जाऊं, मैं आपको सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए एक जयवंत मसीह की तरह जीने के लिए, सबसे पहली चीज, The first thing you need to live as a victorious believer. का वचन सुनिएगा। Hear today's word intently. मैंने आपको क्या कहा था? केवल सेलिब्रेट करने नहीं आए हैं हम। I told you you've not just come to celebrate. We have also come to dedicate our lives. हम अपने जीवन को उसको ये नया समर्पित साल करने आए हैं. हम प्रभु यीशु मसीह को डेडिकेट करते हैं। We will dedicate this new year to the Lord Jesus. Hallelujah. Amen. So पहली चीज, जब प्रभु यीशु मसीह उस परमेश्वर की आत्मा से उसका बपतिस्मा हुआ, तो पहली चीज जो पिता ने उससे कही, क्या कहा? You are my नहीं, you are my son नहीं कहा, you are my beloved son. The first thing that the Father told Jesus when he was baptized with the Holy Spirit is, "तू मेरा प्रिय पुत्र है." Amen. That's what it's very important for you to understand this. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस बात को समझें कि आप केवल पुत्र नहीं, that you are not just a son, आप beloved, सबसे प्रिय पुत्र हैं। you are the beloved, the most cheered, the most beloved son. सबसे पहला आपको ये जानना है कि आप अनकंडीशनली प्यार किए गए हैं परमेश्वर पिता से। The first thing you need to know is that the Father loves you unconditionally. Amen. मगर जब पिता ने ये बोल दिया, उसके बाद यीशु मसीह गया, and he was confronted by the devil. But after the Father said this, Jesus went और उसने शैतान का सामना किया. आप जानते हैं, जब परमेश्वर आपको एक वर्ड देगा, हमेशा शैतान उस वचन की वजह से लड़ने आपके पास आएगा। You know, whenever God will give you a word, the devil will come to fight you because of that word. परमेश्वर ने जब आदम और ईव को वर्ड दिया, उसके बाद वो आया उस वचन को तोड़ मरोड़ के। प्रभु यीशु मसीह को पिता ने जब वचन दिया, तो उसके लिए लड़ने उस वचन, वो हमेशा, whenever God speaks to you, he will come to bring doubt in your heart. After God gave the word to Adam and Eve, the devil came to twist that word and test them. And similarly, when the Father gave the word to Jesus, the devil came to test that word. आप सबको साफ सुनाई दे रही है मेरी आवाज? You all can hear me? जब मैं इस साल के लिए प्रार्थना कर रहा था, When I was praying for this मैं year, प्रभु से प्रॉमिस वर्ड मांग रहा था इस साल का, I was asking the Lord for a promised word for this year. तो प्रभु ने जो मुझे वचन दिया, जो ये साल है, दिस इज द ईयर हमारे लिए, मुझे बाकियों का नहीं पता, हमारे लिए, अगर आप इस घर में बोए गए हैं, ये हमारे लिए है। दिस इज द ईयर ऑफ ग्रेट ग्रेस एंड ग्रेट पावर। If you are planted in this house, the word that the Lord has given for us is महान अनुग्रह और महान सामर्थ्य का साल। Say great grace, महान अनुग्रह and great power, और महान सामर्थ्य का। Oh hallelujah! ये ऐसा भयंकर डायनामाइट कॉम्बिनेशन है। This is a deadly dynamite combination. Amen.
जब महान अनुग्रह और महान सामर्थ्य मिल जाता है when great grace meets great power, तो एक माइटी एक्सप्लोजन होता है। a mighty explosion takes place. आमेन। और जब वो महान अनुग्रह आपके जीवन में कार्य करेगा, परमेश्वर आपको उन चोटियों में बिठाएगा जहां आप अपनी सामर्थ्य से नहीं जा सकते थे। And when great grace works in your life, the Lord will set you up on such high peaks, high mountains where you could not have gone on your own. सो एक्सपेक्ट करो इस साल, So expect this year. एक्सपेक्ट नए दरवाजे खुलने वाले हैं यीशु के नाम में। Expect new doors are about to open in Jesus' name. आमेन। Amen. Acts 4:33, I'll read this. प्रेरितों के काम 4 उसका 33। And with great power the apostles gave witness to the resurrection of Lord Jesus, and great grace was upon them all. प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। बड़ा सामर्थ, ग्रेट पावर, बड़ा अनुग्रह। ग्रेट ग्रेस। आमेन। Amen. इस साल आप ये बड़ा सामर्थ और बड़ा अनुग्रह चखने वाले हो यीशु के नाम में। This year you are going to taste this great power and great grace of God on your life. आमेन। मगर इसके पीछे एक उद्देश्य है। But behind this there is a और purpose. उद्देश्य क्या है? What is that purpose? कि हम उसके जी उठने का, उसके पुनरुत्थान की गवाही देंगे इस साल। मैं बिलीव करता हूं इतनी सारी आत्माएं इस साल हम बचाएंगे यीशु के नाम में। That we will be witnesses of His power, His resurrection, and I believe we are going to save many souls this year. अभी सबसे बढ़िया बात इसमें क्या है? उन्होंने यीशु मसीह की कहानी नहीं बताई। The best thing about this is they did not tell the story of Jesus. They are not giving a witness of a story character, वो एक कहानी के पात्र के बारे में नहीं बता रहे, of a historical Jesus. एक ऐतिहासिक यीशु के बारे में नहीं। They are witnessing about the resurrection of Lord Jesus Christ of Nazareth. वो गवाही दे रहे थे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान, मुर्दों में से जिंदा होने यानी अब जब आप प्रचार करोगे तो उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ प्रकट होगी और ऐसी गवाहियां आप देखोगे जो आपने आज तक नहीं देखी। की। That means when you will witness about Him now, you will see great power and you will see testimonies that like you have never seen before. Amen. मैं बिलीव करता हूँ यहाँ पर डिलीवरर्स बैठे हैं। I believe deliverers are sitting here in this place. आप मानते हो? अब हाथ दिखाओ मुझे अगर आप कहते हो आप छुड़ाने वाले हो। Show me your hand if you believe you are a deliverer. Amen. Say I am a deliverer. कहे मैं छुटकारा देने वाला हूँ। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है God has anointed me कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं that I preach the gospel और जो बंधुआई में पड़े हुए हैं उनको मैं प्रचार करूं। and deliver those who are in bondage. Amen. हालेलुया। और जो प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको पहले संडे को बताऊंगा, And I'll give you the prophetic instruction on first Sunday. मगर आज एक स्पेसिफिक वर्ड है जो मैं आपको देना चाहता हूँ इस साल के लिए। But today there is a specific word that I want to give you for this और year. मैं चाहता हूँ ये वचन आप अपने सामने रखना पूरे साल, And I want you to keep this word in front of you the entire year. क्योंकि ये हम सब के लिए ये वचन है। Because this word is for all of us. Amen. Amen. मैं विश्वास करता हूँ ये वचन हमें उस कमिटमेंट में बनाए रखेगा। I believe this word will sustain us in that commitment. हमें पानी की तरह नहीं जीना है। We don't have to live like water. आप पानी को जब उड़ेलते हो कहीं पे When you pour water somewhere, तो वो सबसे लीस्ट रेजिस्टेंस वो उधर ढलता जाता है। it goes towards the path of least resistance. नहीं, लाइफ विल नॉट हैपन टू यू, यू विल हैपन टू लाइफ। जिंदगी अपने आप नहीं होगी पर आप उसको नियंत्रण में रखेंगे अपने। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, लाइफ विल नॉट हैपन टू यू। अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। Life will not happen to you, but God has given you authority over your life. आपको जय में चलने के लिए बुलाया गया है। You are called to live in victory. Amen.